Good morning, class. Today we will discuss about the remaining properties of multiplication. Okay, multiplication can consist two basic properties. Okay, we are discussing earlier. Now today we are just going to discuss about the commutative law of addition, which is property number 2. Okay, so multiplication can follow the commutative law. Okay, multiplication can follow the commutative law, मल्टीप्लिकेशन कैन फॉलो द एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, जिस तरीके से एडिशन में क्या था कि एडिशन कैन फॉलो ऑल द लॉज. ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन कैन फॉलो ऑल द लॉज. ठीक है, एडिशन के केस में एडिशन जो है कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है, एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है. तो मल्टीप्लिकेशन भी हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, मल्टीप्लिकेशन भी जो है हमारा वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, व्हेन two integers are multiplied, then which type of result we have? A into b is equal to what? B into a. Okay, a into b is equal to what? B into a. Okay, we will change the order. Okay, in the case of commutative we have two integers, as well as in the case of associative we have three integers. Okay, so if you want to prove that multiplication can follow the commutative law, yes or no, then this section you want to take in the LHS. Firstly solve this section in the terms of LHS. After that you will solve this section in the terms of RHS. Both are being equal. Okay, if both are being equal then you can say that. और आपको मालूम भी है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है. ठीक है, ये वेरी करते हैं. ठीक है, तो LHS और RHS की वैल्यू क्या होगी? वो इक्वल होगी. ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि पहले आप LHS को सॉल्व करते हैं या पहले आप RHS को सॉल्व करते हैं. ठीक है, वाई? बिकॉज LHS एंड RHS, ओके, दिस विल कंसिस्ट थ्री कंडीशन की. आप LHS को लेके चल रहे हैं, RHS के बराबर आ जाता है, या RHS की वैल्यू और LHS की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल आती है, या RHS LHS की इक्वल आता है, वॉट एवर. ओके, सी सम एग्जाम्पल्स आर देयर. 4 into 3, okay, this is A, this is B. A into B, 12 is there. B into A, 12 is there. Okay, both will consist same answer. Okay, so this will shows what? कि multiplication can follow the commutative law. Okay, same thing. A into B minus, this will consist minus sign, and this will consist plus sign. Minus into plus, what? Minus is there. 3 5s are 15, minus 15. Just change the order. 5 will taken first, minus 3 will taken second. 5 will consist plus sign, plus into minus, minus is there. 5 3s are 15. Okay, both are being equal or not? Both are being equal. Okay, so like this way we will finalize the properties, okay, or the calculation which will follow or not. Okay, so multiplication can, what the result is going on, क्या रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है? यहाँ से यही रिजल्ट निकल के आता है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. ठीक है, एंड रिगार्डिंग टू द commutative law of multiplication, A into B is equal to what? B into A. Either we have any type of integer. Okay, third one is associative law. Okay, multiplication can follow the associative law also. Okay, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है. ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है. ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी वो फॉलो करता है. हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो इंटीजर्स को लेके चलते हैं. अगर मल्टीप्लिकेशन है तो A इंटू बी कर दिया. LHS में तो RHS में ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं, B इंटू ए आ जाता है. ठीक है, अब एसोसिएटिव के केस में हमारे पास तीन इंटीजर्स होंगे, A, B और C. ठीक है, तो ए को हमने इंडिविजुअल रखा, बी और सी को एक साथ ले लिया. ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देंगे, ए और बी को एक साथ ले लेंगे, सी को इंडिविजुअल ले लेंगे. ठीक है, दिस विल शोज LHS, दिस विल शोज RHS, दिस विल शोज LHS, दिस विल शोज RHS. ठीक है, देखिए डिफरेंस केवल इतना होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन इंटीजर्स होते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले इंटीजर को आपको अकेला लेना है, बाकी रिमेनिंग जो दो इंटीजर्स हैं उनको आप ब्रैकेट में लीजिए. आप फर्स्ट दो इंटीजर्स को भी आप ब्रैकेट में ले सकते हैं, तीसरे को आप इंडिविजुअल कर सकते हैं. ठीक है, RHS में फर्स्ट वाले को फिर इंडिविजुअल करना पड़ेगा, लास्ट दो को आपको ब्रैकेट में लेके चलना पड़ेगा. ठीक है, नो बाउंडेशन इज देयर. ठीक है, ओनली द डिफरेंस इज देयर. इसके अकॉर्डिंग LHS ये है, आपके अकॉर्डिंग LHS ये हो जाएगा, बस यही डिफरेंस होगा. इसके अकॉर्डिंग RHS ये है, आपके अकॉर्डिंग RHS क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. गॉट इट बेटा?
ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। जस्ट सी सम एग्जांपल्स आर देयर। सपोज वी आर टेकिंग 3 integers 2, 3 and 4, ठीक है। सो रिगार्डिंग टू दिस a into b cross a into b into c, a into b into c will be taken inside the bracket, ठीक है। 3 4s are 12, 2 into 12 24, कितना आ गया 24 आ गया। अब इसके ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि a into b एक साथ ले लिया और c को अलग ले लिया, ठीक है। a into b को एक साथ ले लिया हमने, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 हो गया, यानी कि LHS RHS के बराबर हुआ या नहीं हुआ, हुआ, ठीक है। देन व्हाट वी विल फाइनलाइज, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइनलाइज दैट दिस विल फॉलो द एसोसिएटिव property of multiplication can follow the associative property. Got it? See the another example is there. -5, okay, is the first integer, 6 is the second integer, and 7 is the third integer. First will regarding to this, okay, regarding to this one, first will taken alone, last two will taken inside the bracket, and here first two will taken inside the bracket and last will be taken alone, ठीक है। यही मेथड है जिसको आपको लेकर के चलना है, जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो फॉर दिस वन 6 7 जा 42 -5 into 42, दिस विल कंसिस्ट प्लस साइन, तो हम पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। देन आफ्टर दैट 5 into 42 -210, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल चेंज द ऑर्डर, -5 और 6 को एक साथ ले लिया, 7 को अलग कर दिया, ठीक है। 6 will consist plus sign plus minus minus, 5 6 are 30, -30 into 7 -210, ठीक है। So here in the LHS we are getting -210, or here in the RHS we are getting -210. Both are being same or not? Both are being same. So this should be clear out. Associative law can exist, okay, in the multiplication operation, or multiplication can follow the associative law. We can say that multiplication can follow the associative law, okay. After that zero property, okay, जीरो प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में जीरो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, एडिशन के केस में जीरो प्रॉपर्टी का मतलब क्या था, सब्ट्रैक्शन के केस में जीरो प्रॉपर्टी का मतलब क्या था, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब रिजल्ट सभी के डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। एडिशन के केस में क्या था कि अगर हम जीरो को किसी भी इंटीजर के साथ ऐड करते हैं, या किसी इंटीजर को हम जीरो में ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता था, इंटीजर। आइदर जीरो विल एडेड विथ एन इंटीजर और एन इंटीजर विल एडेड विथ जीरो, देन इन बोथ द केसेस वी गेट द इंटीजर। आइदर द इंटीजर इज पॉजिटिव और द इंटीजर विल बी नेगेटिव। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या था कि इंटीजर में से हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या जीरो में से हम किसी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों ही केसेस में वी गेट द इंटीजर, आइदर द इंटीजर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब जीरो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द जीरो प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, आइदर एन इंटीजर will be multiplied by 0 और 0 will multiply by an integer, then we get 0, ठीक है। मतलब किसी भी इंटीजर को, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो बेटा, चाहे वो इंटीजर नेगेटिव हो, ठीक है, अगर हम उस इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 0 को हम किसी इंटीजर, चाहे वो इंटीजर हमारा पॉजिटिव हो, चाहे वो इंटीजर हमारा नेगेटिव हो, मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों ही केसेस में रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 into 0 what, 0 is there, 2 into -0, 0 is there, -5 into 0, 0 is there, okay. Next property is what, multiplicative identity, okay, multiplicative identity, okay, identity, you know identity means what, जीरो प्रॉपर्टी में क्या था, हम जीरो को मल्टीप्लाई करते थे इंटीजर से, या इंटीजर को मल्टीप्लाई करते थे जीरो से। आइडेंटिटी के केस में क्या हो जाएगा, इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मीन्स वन, ओके, आइडेंटिटी मीन्स वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स वन, ओके। व्हेन एन इंटीजर इज मल्टीप्लाई बाय वन, और वन विल मल्टीप्लाई बाय एन इंटीजर, जब किसी भी इंटीजर को हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं, या जब हम वन को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों ही केसेस में जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है, वो रिज़ल्ट क्या होता है, इंटीजर ही होता है, ठीक है। सही है, आइडेंटिटी मीन्स वन, वन को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, व्हाट द आंसर, ए इज देयर,
ए को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट द आंसर, ए इज देयर, वी गेट द सेम इंटीजर. ओके, फॉर एग्जांपल 1 is multiplied by -3, then what, -3. 3 is multiplied by 1, then what, 3 is there. 1 is multiplied by 12, then what, 12 is there. Okay, distributive law of मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अब दिस वन इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट लॉ. ठीक है बेटा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है. ठीक है, और इसमें भी हमारे पास 3 ही इंटीजर्स होते हैं, लेकिन उन तीनों इंटीजर्स को लिखने का जो पैटर्न होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन और ओवर एडिशन. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, ओवर एडिशन. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, किसके ऊपर है, ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. गॉट इट, मल्टीप्लिकेशन. अब इसका मैं मतलब आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. देखिए, ए इंटू बी प्लस सी, जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ए इंटू बी होगा, फिर ये प्लस साइन होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना. फिर ए को आपने सी से मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन कितनी बार आया है, 2 बार आया है. ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 2. एडिशन कितनी बार आया है, 1 बार आया है. ठीक है, तो जो साइन, ठीक है, 1 बार आ रहा है तो वो हो जाएगा ओवर, और वो साइन कौन सा है, एडिशन है, तो ये हो जाएगा ओवर एडिशन. मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन. अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन 1 से ज़्यादा बार आया है, तो 1 से ज़्यादा बार का मतलब क्या हुआ, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन साइन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब 1 से ज़्यादा बार हम मल्टीप्लिकेशन साइन को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ. ठीक है, सो दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ distributed multiplication over addition. Same thing is there, distributed multiplication over subtraction. ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस साइन कितनी बार है, 1 बार है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन साइन को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का केस ये बन जाएगा. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक्चुअल मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स यू कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ठीक है, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो व्हाट आंसर इज देयर, हम मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. अब मल्टीप्लिकेशन के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन साइन जो होगा, ठीक है, वो 1 से ज़्यादा बार यूज़ होगा, कहाँ पर, RHS में. 1 से ज़्यादा बार यूज़ होगा RHS में. ठीक है, और जब 1 से ज़्यादा बार जो साइन यूज़ होता है तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन. और जो साइन 1 बार आता है, ओवर एडिशन या फिर ओवर, उसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन. आइदर वी कैन से ओवर एडिशन और वी कैन से ओवर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज़ व्हाट, ए इंटू बी प्लस सी. मल्टीप्लाई करोगे आप तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. मल्टीप्लिकेशन कितनी बार आया है, 2 बार. ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. यहाँ पर ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का केस ये बन जाएगा. गॉट इट. सो ठीक है, दिस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट लॉ. ठीक है, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी होता है बेटा, और डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी होता है. ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या है. ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अकॉर्डिंग विच टाइप ऑफ रिजल्ट वी विल गेट. नाउ सी सम एग्जांपल्स आर देयर. ये देखिए, ये आपको दिया गया है. ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी. ठीक है, यहाँ प्लस दिया गया, तो यहाँ से ही आप देख के बता देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. और ये इसको देखेंगे आप तो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का केस है ये. ठीक है, नाउ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 को ऐड कर दिया, 9 9 2 ज़ा 18, 18 हो गया. ये तो हो गया LHS का पार्ट. RHS के पार्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, ये 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 18. ठीक है, दोनों 18 आ रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कैन फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. मल्टीप्लिकेशन कैन फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, दोनों को फॉलो करता है. देखिए 9 इंटू
ठीक है, 6 - 3, ठीक है, 6 - 3 कर दिया, 3 हो जाए, 3 9 जा 27। अब इसी का RHS ले लीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 54 हो जाएगा, इसको इसके साथ तो 27 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 27। दोनों रिजल्ट सेम है या नहीं है? LHS मस्ट बी इक्वल टू द RHS and here LHS must be equal to the RHS. Okay, both are being same. So multiplication can follow the distributive law. Okay, which type of distributive law? Then you can say that distributed multiplication over addition and distributed multiplication over subtraction, दोनों ही लॉ को, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो। गॉट इट? तो अब इसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड वॉट एवर यू हैव द प्रॉब्लम, देन यू जस्ट send me your problems on my WhatsApp number. Okay, you know, I think all of you have my WhatsApp number. Okay, so I will send the solutions. Okay, so whatever you have the problem, बेटा एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो इन द इवनिंग your time will be fixed 7 to 8. This is your timing, 7 to 8. Okay, you just send your problems on my WhatsApp number. Okay, and immediately I will give the solution of your problem. Okay, but be serious about your study. Okay, and complete your syllabus. Okay, because I think that your PT first exam after 1 month or after 15 days, I will not clear this thing, but your first exam will be what? PT first exam, तो वो होने वाला है आपका। ठीक है, सो आप उसकी प्रिपरेशन करिए अच्छे तरीके से। लेकिन मैं फिर से वो बता देता हूँ कि वॉट एवर यू हैव द प्रॉब्लम, ऑल ऑफ यू विल डिस्कस टू मी, ओके, इन द इवनिंग, okay, at the time slot 7 to 8 p.m. You just send your problems whatever you have, then after that I just send the solutions. Okay, okay class, thank you.